see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. मेरा नाम प्रदीप्त किशोर दास, आई बिलोंग्स टू ओडिशा। बट ये जो एग्जीबिशन मनमोहन सिंह जी यहाँ जो कंडक्ट किए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसमें जो मेरा पेंटिंग है, नॉर्मली मैं सरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में मैं काम करता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी एंड नेचर को लेके मैं काम, मेरा जो चारों काम में वही रिफ्लेक्ट होता है। अभी जो आज का तारीख में नेचर कितना इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, ये मैं मेरा पेंटिंग में मैं दिखाया। और ये मुंबई आके मुझे अच्छा लगा, मनमोहन सिंह जी का जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आकृति फाउंडेशन बहुत बढ़िया इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए सबको मेरा तरफ से धन्यवाद। स्टार कहाँ देखूँ इसमें Hi, I'm Riya. I am based in Ahmedabad and I'm a contemporary artist. I got this opportunity to show my art here because of Manmohan ji, and I am really excited for it. I'm totally honored that there's so many talented artists here showing their
beautiful artworks. So I'm super excited to see the response. My artwork is usually based on human emotions. So let's see if you can resonate with it and how you can resonate your feelings and put it into words. Thank you. हेलो, मैं बालकृष्ण कामरे फ्रॉम लातूर महाराष्ट्र से हूँ। और मेरे पेंटिंग्स यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। मेरा पेंटिंग जो है सब्जेक्ट बुद्धा पेंटिंग पे मैंने बनाया है। और यहाँ पे काफ़ी जगहों से आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे पेंटिंग्स है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मनमोहन सर का, जो उन्होंने हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी एग्जीबिशन के लिए। सो थैंक यू। हाय, माय नेम इज मानसी डोभाल और यहाँ पे मेरी आर्ट है। जैसे आप देख सकते हैं, ये बुद्धा का आर्टवर्क है। इट्स अबाउट एनलाइटमेंट। एंड जो मेरे ऊपर का आर्ट है, इट्स अबाउट लॉर्ड कृष्णा। जिस तरह वो वुमेन की लाइफ में सब लोगों की खुशियों में, हम सबकी लाइफ में रंग और खुशियाँ लेके आते हैं। सो जो पहला आर्टवर्क है, इट सिंबलाइजेस द हैप्पीनेस जो उनकी बांसुरी से आती है। And this one is about enlightenment. It's about Lord Buddha, or any human being who enlightens everyone's life by being enlightened themselves. So it's all about looking deep within yourself. It's all about consciousness. And this is one of my favorite artwork. I paint in oil, and I love being part of this exhibition. I participate every year. Thank you. Good evening, everybody. Myself Anjani, I'm learning from Mumbai. I'd like to thank Manmohan sir for this opportunity. I work basically in textures, and my theme is Earth, Mother Earth. I work on Earth crust, wherein I just short and sweet, I would like to say, it is not just a surface beneath us. It is a window which we don't look into, but we step into. Thank you so much. जी, क्या कहना चाहेंगे आज की एग्जीबिशन को लेके? हरीश जी इतनी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं, उनको लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? इस हॉल में तो तीसरी बार इनकी एग्जीबिशन लगी हुई है। पहले भी 2 बार लगी थी। पेंटिंग बिकी हुई है। अब इस बार भी उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बिकेगी पेंटिंग। और कैनवास पेंटिंग है ये, एक्रिलिक, सिंपल है, गणेश जी का है और राधे कृष्ण का है। मनमोहन जी को लेके क्या कहना चाहेंगे? मनमोहन जी को लेके ये सारा काम हो रहा है। जितने भी एग्जीबिशन लगते हैं ना, तो मनमोहन जी के थ्रू ही लगते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा हेल्प करते हैं मुझे और मेरे बेटे के लिए। अभी तो ये फाइन आर्ट में है, लास्ट ईयर में है। प्रॉब्लम इनका ये कि बोल नहीं सकते, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। Hi, my name is Vaishali Shah, and this is my third experience with Manmohan sir, and it's been great. And this time, these 2 paintings I've done, these are Vastu compliant paintings. So when Buddha brings calmness in the house, and Lotus brings prosperity, and I love painting Lotus. These are my personal favorite. Thank you. गुड इवनिंग, मेरा नाम मयूर मनोज शिवदंकर। मेरा क्वालिफिकेशन BFA, BPED और MFA। आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। मेरा कुछ पूरा पढ़ाई JJ स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है, और कलर्स ऑफ स्प्रिंग की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे इस मंच पे मुझे संधि दिया है। ये सेकेंड टाइम है मेरा। और ये जो पेंटिंग मैंने किया है उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पेंटिंग का नाम है एब्स्ट्रैक्ट इक्विलिब्रियम। ये एक विजुअल आर्ट ही है। इसमें मैंने कलर्स और बैलेंस में लोगों का जो स्ट्रगल है उसके ऊपर मैंने पेंटिंग किया है, और ये आपको जर्नी दिखाना चाहता हूँ पेंटिंग के थ्रू। बस इतना। So I'm an architect by profession. मेरा नाम करिश्मा राठौर है।
So ये सारे paintings are abstract. I mostly work into abstract paintings. Hi, I am Pooja, ये पूरा and एक, these are my collection artworks. of paintings. हो है. गया This ना? is सुनाई दे रहा है? named as Quiet Terrains. So हर एक painting एक दूसरे से interconnected है. It is derived from landscape forms. ज़्यादा हो Not गया? exactly places, but एक emotion है उसके अंदर landscape forms का जो touch है. And ये exhibition मनमोहन जी ने बहुत अच्छे से organize किया हुआ है. And thank you for the opportunity. It's a great thing. This is my first exhibition, but it's a जोर great. से बोलना पड़ेगा। Thank you. Hi, my name is Hina Minda. I'm acrylic. I work in acrylic and oil paintings. These are my oil paintings. They depict the rush hours, like hustle and calmness. And these are my. They shows ki how the divine power is inside us only, not the outside. And thanks to Manmohan sir, they have provided us a good opportunity to display the work. Thank you. So hi, this is Pooja Parekh. I am a content creator. Sorry, can we repeat again? Yeah, again, ma'am. Hi, this is Pooja Parekh. I'm a contemporary and visual artist, and these all are my paintings. So my journey started in 2018 when I got detected with a heart disease, which is not curable. It's called idiopathic pulmonary artery hypertension, which inspired me to become an artist. And this shows the stillness. This shows this teaching. This is a movement that, you know, no matter how much the world swirls, but the horse is going to stand still and shine bright. And this is about the energy flowing around us, and be positive. And that's what I am. All be positive. And about Manmohan sir, he has been literally forcing me from 2 years to do a workshop, gallery, and exhibit my artwork. And he has been inspiring me since a very long time. And because of him, I am here. Thank you so much. Called the Infinity Sisters. I got a sister 1 year ago, so I chose to make this painting. I have made two sisters. One sister is the universe sister, and one sister is the fire sister. The universe sister is made by Van Gogh. It's the Starry Night. And this is made by Yai Kusama. Anything else? No? Thank you. I am 7 years old. I made a Buddha painting, and this was the sign of peace. I like painting a lot, and I have drawn many paintings. Thank you. Wow. Thank you. Good evening, everyone. My name is Thea. So this artwork is titled Eternal Shakti. The word Shakti represents strength, energy, and divine feminine power, whereas eternal means something that never fades. So together, Eternal Shakti means strength, energy that is constant, quiet, and present within all of us. Through this painting, I wanted to express the form of energy that is often overlooked. The energy, the power of stillness. Her eyes are closed not because she's in escape, but in awareness. She's not disconnected from the world. She's deeply connected inside herself. Her hands are closed. Her hands are folded, representing a balance, a quiet harmony between chaos and calm. If you notice the surrounding, they are detailed, vibrant, and almost overwhelming, just like life itself. So, this is the essence of this painting. Eternal Shakti is not loud, it does not require attention, but Anything else? thank you. This painting shows birds are flowing, the nature is flowing, and birds are flying freely, and
I chose green and golden to make this feel calm and magical. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. I am Mayan Sachdeva. This is my painting. I use blue and because it is my colorful color. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. My name is Priya Jain. This painting is about horizons. This reflects my mind to become an artist. Thank you. Thank you, madam. आज का है और ये दोनों पेंटिंग मैंने क्रिएट किया है. दिस इज ऑयल एक्रिलिक पेंटिंग और इसमें मैंने टेक्सचर और क्ले वर्क किया है. इसमें बुद्धा का मैंने पूरा लुक दिया है और दिस पेंटिंग इज टोटली क्ले वर्क एंड मिरर वर्क. और इसका जो थीम है वो हमारा जो एटर्नल हार्मनी टाइटल दिया है मैंने इसको. और जो हमारा अंदर का जो शिव शक्ति रहता है जो जिसको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, इसमें जो हमारा 7 चक्र होता है मतलब टोटली हमारा जो इनर शिव शक्ति जो बैलेंस करना होता है उस पे ये थीम बनाना है. तो दिस इज माय आर्ट. Thank you, ma'am. थैंक यू. So this painting is an acrylic painting, as you can see, and this painting came from a quiet moment where I chose peace and chaos, and the woman represents calmness, and the birds are her thoughts, which represent fearless motions. And this painting shows calmness and inner peace in our intense lives. हिमांशु सिंह. मैं हिमांशु सिंह. आई डू एक्टर एंड मॉडल. तो ये पार्ट टाइम मेरा हॉबी है. मैं पहले बताऊंगी माइंड वर्सेस हार्ट के बारे में. इसमें ये मैंने दोनों चीज़ें इसमें बनाई है, माइंड एंड हार्ट. माइंड में आप देखोगे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं. लाइक कभी कभी आप बहुत परेशान होते हो तो वो हमने इसमें प्रेजेंट किया है. एंड हार्ट लाइक ब्रेक हार्ट वर्सेस टेंस्ड माइंड. तो ये है हार्ट वर्सेस माइंड. ओके. एंड सेकेंड इज लाइक कृष्ण आइज. इसमें यू कैन फील कि आइज कुछ कह रही है, राइट. एंड देयर इज तिलक ऑल्सो जो आप फील कर सकते हो बट देयर इज नो डिटेलिंग. तो बस छोटी सी ये पेंटिंग है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम. तो थैंक यू. गिव योर या. हेलो, नमस्कार. मेरा नाम अखिलेश केजी गौड़ है और मैं अभी यहाँ पे मनमोहन जी के साथ में आकृति आर्ट फाउंडेशन के साथ में ग्रुप एग्जीबिशन कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल ग्रुप एग्जीबिशन है. और मैं BFA MFA किया हुआ है स्कल्पचर से और मैं मुंबई में रह के बहुत सारी एग्जीबिशन कर रहा हूँ, पेंटिंग स्कल्पचर्स करता हूँ. और मैं बॉलीवुड में भी एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ जिसमें मेरी आर्ट फिल्में रिलीज हो चुकी है नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर में. और यहाँ पर मेरा एक ये स्कल्पचर्स यहाँ डिस्प्ले है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर है और इसको मैंने सैंड कास्टिंग करके मैंने बनाया हुआ है. और ऐसे बहुत सारे मेरे स्कल्पचर्स हैं. इसमें मिक्स मीडिया में मैं काम कर रहा हूँ, काबर गिलास में वर्सेस है. तो ये मेरा जर्नी है. थैंक यू सो मच. My name is Kiran Shirur. This time I have displayed 2 paintings. One is Gossip and the second one is Cycle Race. Saying about Gossip, the painting itself tells a story. Like all ladies are discussing. Then there is a dog who is listening to it. Mostly जो गैदरिंग होता है ऐसे ही गेट टुगेदर फंक्शंस होता है. तो गेट टुगेदर फंक्शंस में एक ऐसी आपस में मिलजुल के एक गॉसिप हो जाता है. तो उस पर मैंने एक ये लिया. सेकेंड वन इज साइकिल रेस. ये 2 मैंने साइकिल रेस मतलब 2 साइकिल्स बताए और एक पीछे एक मोबिलिटी व्हीकल रहता है, वैन रहता है कि वे चेक करो कि साइकिल वगैरह बराबर चल रहा है या साइकिलिस्ट को कोई तकलीफ नहीं ना. और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैच मारा है ब्लू कलर का. तो उसमें स्पीड बता रहा है.
मतलब ऑडियंस ऑलमोस्ट डिफ्यूज में है, और डिफ्यूज में है उसमें से फिर ये ऑपोजिट कलर स्कीम लिया है, ऑरेंज और ब्लू। यस, और मैं मोस्टली थैंकफुल हूँ कि मनमोहन जी हाँ चांस दिया है इसके लिए। मोस्टली मैं एनिमेशन वगैरह उसमें काम करता था एज अ प्रॉप आर्टिस्ट, और अभी फिलहाल मैं शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक में एज ऑफिसर काम कर रहा हूँ। शिवधंकर, मैं ठाणे से हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है। क्वालिफिकेशन है BFA, MFA, DPED, और अब मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। ये जो मैंने पेंटिंग किया है एब्स्ट्रैक्ट इक्विलिब्रियम, ये जो पेंटिंग है विजुअल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टिव जर्नी है। ये देखने वालों को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, स्ट्रगल और शांति की तलाश के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये एब्स्ट्रैक्ट के जरिए मैंने बारीकी से पेंटिंग की है। इसमें फिलोसॉफिकल कंटेंट दिखाया है, इसीलिए यह एक इथेंटिकली और इंटेलेक्चुअल इमोशन के लेवल पर असरदार है, और ये मीनिंगफुल और सोचने पर मजबूर करने वाला एक उदाहरण है, और जिसमें नेचर, इंसानी इमोशन, फिलोसॉफिकल सोच और कुछ खूबसूरत बैलेंस किया गया है। और ये मेरा कलर्स ऑफ स्प्रिंग की तरफ से सेकेंड टाइम मेरा सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैं मनमोहन सर जी का आभारी हूँ। और उनके ये जो कलर्स ऑफ स्प्रिंग, ये जो एग्जीबिशन मनमोहन सिंह सर जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का पेंटिंग भी सोल्ड आउट करते हैं, और उनका काम बहुत अच्छा है। तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, इस मंच पे मुझे सिलेक्ट किया और मुझे प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। थैंक यू। Hi, I'm Sanjana Ramchandani. I'm an artist from Mumbai. These are a few of my works where you can see Shiva in an abstract form. So I like to work with figures as well as abstract. This is like merging in both the things. Also, this is Ganesha and some flowers. So where we see that I think God doesn't need a form. It can also exist in nature, in colors and in different forms. This is my third exhibition with Manmohan ji, and I would like to say that his work, the way he arranges and curates is really nice. I think everybody should give it a try and try your paintings with him, because of course he does has good sales as well, and he's very good with the artists and gives them their due respect and what they deserve truly. Thank you. Thank you, ma'am. स्टार्ट से फिर थोड़ा पेंटिंग के बारे में बताना है ना, यहाँ पे रेडी? ओके। So मेरा नाम है, my name is Manzaraj Mehta and I'm in Campbell School, grade 4. I'm 8 years old, I'm turning 9. So what I have made is Raja Niraj, which is another name for Lord Krishna. I have 3 favorite gods: Lord Krishna, Ganpati and Tirupati Balaji. So I chose one of those gods to make my painting. The golden foil symbolizes name symbolizes Lord Krishna being the king in my painting, because Radharaj is the king form of Lord Krishna. I also love to serve Lord Krishna, so with my money I should buy something to serve Lord Krishna. Look here and thank you. What did you say last? Yes. My name is Manaisha. I'm 7 years old and I've made 2 paintings. One Ganpati and the other one Circle of Life. My name is Anav Bafna. I am 11 years old and my painting's name is The Epitome of Ekatma. I made this painting by using acrylic colors. This painting shows
the divine union of Shiv Parvati. This painting inspired I was inspired to make this painting by seeing the love story of Shiv and Parvati. Shiv, the destroyer, Parvati, the creator. Together, they used opponents and made respect. Thank you. And my second painting is Ganesha. Thank you. Hello everyone, my name is Kian Jain. I'm from Campion School. I made this painting when I was 11, but I'm about to turn 12. The name of this painting is Flames of Rebirth. This painting is inspired by the idea that endings are never truly the end. You can see as the phoenix rises through the flames, it shows all the struggle we have, and it's leaving through the struggle behind. It shows the fiery tones. The fiery tones of the painting represent courage, renewal, and hope. Thank you. हेलो नमस्ते, माई सेल्फ श्रुति चारुदत्ता सोमन। मैं MFA आर्टिस्ट हूँ। ये मेरे पेंटिंग्स है। कलर्स ऑफ स्प्रिंग 26 में मैंने पार्ट किया है। मनमोहन जी ने हमको बहुत अच्छा मंच दिया है, बहुत अच्छा डिस्प्ले, गैलरी बहुत अच्छा है। मेरे पेंटिंग्स फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डायलॉग विथ माई सेल्फ, ये थीम के ऊपर है। जो मेल एंड फीमेल एनर्जी होती है, जो उनका कॉन्शियसनेस होता है, उसके बारे में सारे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। आई होप यू विजिट द शो एंड energize all the artists presented here. Thank you. Gratitude to Manmohan Ji Jaiswal for inviting. This is the 14th year I've been here. A wonderful international exhibition been organized by him. A wonderful efforts, his passion is cherished. Thank you. Yes, sir. Tell me about your exhibition. It is very, very unique with all across from different fields, from different types, from different states. It's very, very different, and you can see it's all having different themes. What about Manmohan Singh? Manmohan sir. Manmohan sir. जो फाउंडर है उन्होंने so he has invited, so gratitude. He's great, and we are very thankful to him for inviting, for the way he has been managing. So you sir? बेसिकली अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो हर एक पेंटिंग कुछ कहती है। एंड मोस्टली बहुत लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, बट अगर आप जो पेंटर है उसके इमोशन को समझोगे तो वो टाइम में उनके जो इमोशंस है वो फोटो के थ्रू प्रिंट होते हैं। एंड मोस्टली अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। उनका 40 इयर्स 50 इयर्स का एक्सपीरियंस हर एक पेंटिंग में आप डिटेल में जाओगे तो जो कलर वेरिएशन है दैट इज देयर इमोशन वेरिएशन। इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट, इट ओनली टॉक्स अबाउट एक्सप्रेशन, अबाउट लव, कंपैशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कलर वेरिएशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे। अभी वॉर हो रहा है, राइट? अभी के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इंसानियत लोग भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेंटिंग के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? जैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है वाया फोटो, हमारा ब्रेन वर्ड से प्रोसेस नहीं करता है। आप उर्दू में लिखो, संस्कृत लिखो, इट ओनली प्रोसेसेस द वीडियो। इसलिए हमने देखा रहेगा यूट्यूब बहुत फेमस है, लेकिन पहले हम लोग 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो देखते थे, बट राइट नाउ ओनली 7 सेकेंड में नया मटेरियल आपको चाहिए। तो व्हेन यू आर डूइंग पेंटिंग, अगर आप पेंटर भी नहीं हो, आप पेंट कर रहे हो, वो टाइम में आपको आधा घंटा 1 घंटा आपका ब्रेन फोकस करता है। तो यू कैन लर्न हाउ टू फोकस मोर एंड मोर, स्पेशली फॉर द किड्स। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपको पेंटिंग नहीं भी आती है तो सर के पास आके आपको सीखना चाहिए। एंड थ्रू दैट बहुत सारे इमोशंस होते हैं, राइट? मुझे याद है जब मैं स्कूल से रोते रोते आता था, मेरी मदर रहती थी, लेकिन अभी के टाइम में मेरी वाइफ ऑफिस में रहती है। तो मेरे बच्चे को इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए घर पे कोई भी नहीं है। तो पेंटिंग इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द इमोशन। व्हेन द पेरेंट्स कम होम, दे कैन सी द पेंटिंग। आज झगड़ा हुआ है, पता चल जाएगा पेंटिंग में।
आज उसका कुछ रिलेशनशिप हुआ है वो पेंटिंग में पता चलेगा। तो यू कैन एक्सप्रेस थ्रू कलर विदाउट टेलिंग एनी वर्ड ऑफ इट। तो आज मैं देख रहा हूँ ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट हिज इमोशंस। थैंक यू। ये बड़े गर्व की बात है कि मनमोहन जायसवाल जी ने हमेशा इनके अंदर समाज के प्रति एक ऐसी भाव रहती है कि लोगों को जोड़े, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़े। तो आज इन्होंने जो एक इस तरह की कलात्मक वृत्तियों का यहाँ पे संग्रह लगवाया है, इसमें आपने कुछ तरह तरह के लोग हैं, उनकी नई नई भावनाएं दिखती है और उनसे अपेक्षा रहती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और खुशी का माहौल होता है और हम लोग के मस्तिष्क में एक भावनाएं जागृत होती है। कितनी खुशी है, कितनी अच्छी दिख रही है, क्या संदेश मिल रहा है। तो एक हंसी खुशी का माहौल, एक अपना माहौल, लोगों का इकट्ठा होना और एक ऐसी चीज पे जो कल्पना और भावना दोनों का संगम है, तो बहुत ही माधुर्य के साथ ये चीजों का एक समावेश है। लोग अपने स्तर पे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद लेते हैं और इसको महसूस करते हैं, और वैसे उनके अंदर एक अवधारणा मिलती है, सपोर्ट मिलती है समाज के लोगों का, उनको एक बहुत बड़ा उत्साह मिलता है जिससे उनके अंदर वो भावनाएं और विकसित होती है। तो ये बहुत है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर उस चीज को और गौरवान्वित कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मनमोहन जी को धन्यवाद देंगे कि वो लोगों को इस तरह से एक स्थान पे लाते हैं और उस तरह की अलग अलग प्रायोजित खुशियों को देते हैं, कभी कविता के रूप में, कभी बिजनेस के रूप में, कभी आर्ट के रूप में। तो उनकी अलग अलग अवधारणा, अलग अलग कार्य की। तो आज ये उस तरह का दिन है जहाँ पे कला, संस्कृत, धर्म, अध्यात्म सब मिला हुआ है। सबकी खुशियां रंग बिरंगी है, सब बिल्कुल अपने फ्रेमिंग में सतरंगी जीवन जी रहे हैं, खुश है, दूसरे को खुशियां दे रहे हैं। धन्यवाद। मुझे कहना है कि आज यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आई थिंक मनमोहन जी और आकृति फाउंडेशन ने जो आर्ट का कलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, वंडरफुल टू सी कि इतने सारे डाइवर्स आर्टिस्ट को उन्होंने प्रोत्साहित किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और मुझे बेहद खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चे भी उनकी कला यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मनमोहन जी का मेहनत तो अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू, इट्स ग्रेट। थैंक यू। सॉरी, गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, समथिंग न्यू। यस सर, ऐसा है कला को तो जितना सराहा जाए कम है। जब सारे कलाकार एक जगह जुड़े और तो उसको महोत्सव से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। ये तो कला का महोत्सव हो रहा है। और मनमोहन जी तो हमारे बहुत खास दोस्त है, तो उनके कहने पे हमको आना ही था। तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द आर्टिस्ट, मनमोहन जी एंड एवरीबॉडी हु इज पार्टिसिपेटिंग। एक्सीलेंट जॉब, हार्ड वर्किंग है, वेरी हार्ड। मनमोहन जी, जायसवाल जी बहुत सालों से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इंडिया के सारे आर्टिस्ट अपकमिंग और ऑल्सो जो मेच्योर्ड आर्टिस्ट हैं उनको साथ में ला रहे हैं, एक दूसरे से उनको प्रेरणा मिले, एक दूसरे से सीखें। और वो भी फॉरेन के आर्टिस्ट भी लाते हैं, क्योंकि फॉरेन के आर्टिस्ट का अलग टाइप का वो होता है। वो अपने इंडियन आर्टिस्ट फॉरेन आर्टिस्ट को देखिए इंस्पायर होकर अलग टाइप के कोई पेंटिंग करें, क्योंकि इंडिया में लाखों आर्टिस्ट हैं और सबको एक जैसा बनाए तो ठीक नहीं रहेगा। तो फॉरेन आर्टिस्ट आएंगे तो अलग थॉट रहेगी, अलग क्रिएटिविटी कर रहे हैं। वो आर्ट वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है कि सबको साथ में इकट्ठा करना, फॉरेन वाले, इंडियन वाले, उससे नए टाइप के वर्क्स मिलेंगे, जो नए सोर्स मिलेंगे, सबको काम मिलेगा। तो इंडिया से एक्सपोर्ट करना है। जो आर्ट प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीआईपी लोग आए हुए हैं, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आर्टिस्ट को एक्सेस मिल रहा है। आई थिंक आकृति आर्ट फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये एग्जीबिशन करके एक अच्छा एक्सपोजर दिया है। आई विश ऑल द आर्टिस्ट ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन फ्यूचर। एंड जितने भी आप आर्ट वर्क देख रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कल्चरल, इंडिया सेंट्रिक, इंडिया से रिलेटेड जो अपना मिथोलॉजी है। आई विश ऑल द बेस्ट। In these days of wars, war and worry, what we require is something that will unify people, and that can happen only with art. And Manmohan Ji is doing a fantastic job of organizing these exhibitions, because as they say in Sanskrit, Tatra Yojakaha Durlabhaha.
So I congratulate him for the excellent efforts we have been doing from year to year. Excellent. से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा, और आज मैं इस आर्ट एग्जीबिशन में हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, रंगों के बीच में हूँ। और सबसे पहले मनमोहन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि ये इनका 24वां आर्ट एग्जीबिशन है और मनमोहन जी इस बहाने इस एग्जीबिशन रखते हैं और देश भर के जितने भी चित्रकार हैं उनको एक मंच देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। आज हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहाँ की युद्ध के बादल पूरे विश्व पर मंडरा रहे हैं और ऐसे में समय में जब हम इन चित्रों को देखते हैं, इन रंगों को देखते हैं तो मन में एक विश्वास जागता है, एक आशा जागती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कल हमारा सुंदर ही होगा। और इन बच्चों को भी इन्होंने यहाँ पर एक जगह दी, एक कोना दिया कि बच्चे आकर अपने मन के भावों को यहाँ प्रस्तुत करें। और मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के मन में क्या क्या भाव है। जो एक पेंटिंग मैंने ली, उस बच्चे को मैंने पूछा कि बेटा तुम इसका क्या करोगे इस पैसे का, उसने मुझे यही कहा कि आंटी मैं इसे मंदिर में जाकर चढ़ा दूंगा। देखिए क्या उसकी भावना है। और बोल रहा है कि भविष्य में मुझे बहुत सारे मंदिर बनाने हैं और 2-2 घंटा वो मंदिर के बाहर बैठता है। अभी 7 या 8 साल का वो बच्चा होगा। तो बच्चे इसी तरह से चित्रकला के माध्यम से एक कहानी कहते हैं, हमसे अपने जीवन की बात कहते हैं और कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में, तो वही हमें दिखता है कि कल क्या बनेंगे, इनका भविष्य कैसा होगा। मैंने एक जगह लिखा था कि हाँ मैं कुछ पुराने ख्यालों की हूँ क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है। रोज सुबह उठकर सूरज की पहली किरण के साथ ईश्वर के दर्शन करती हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाती हूँ और अपना दिन सवार लेती हूँ और फिर माता पिता सास ससुर की तस्वीर के आगे सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद मांग लेती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कुछ पुराने ख्यालों की हूँ। तो ये पुराने ख्याल अगर हमारे बीच में बसे रहें तभी तो हमारा भारत भारत है, क्योंकि यहाँ पर यही पुराने ख्याल हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। तो मनमोहन जी ऐसे ही आप कोशिश करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, यही सही मायनों में एम्पावरमेंट है। और हमेशा से पहली प्रदर्शनी से आज तक मैं हमेशा इनके इसमें आई हूँ और आगे भी आती ही रहूँगी। बस मेरी इनको सबको शुभकामना है रीना चोपड़ा की तरफ से आकृति फाउंडेशन को। और आप ऐसे ही मनमोहन जी आगे बढ़ते रहिए और मंजू जी का आशीर्वाद और हमारा आशीर्वाद आपको हमेशा साथ रहेंगे। ये मुझे बड़ी दीदी मानते हैं, आशीर्वाद तो मिलता है। जी मनमोहन हो गया भाई। और मेरा सौभाग्य है कि परम आदरणीय मंजू भाभी का, जिनको मैं मां समझता हूँ, पहली बार से इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। तो आज ये इनके आशीर्वाद से ये जो हमारा कला का जो वृक्ष था, जो बहुत बड़ा पौधा से वृक्ष बन गया, तो हम इसी बहाने मिलते जुलते हैं, लोगों के कला को हम प्रदर्शित करते हैं, उनको भी एक मौका मिलता है। आज सोलो एग्जीबिशन करना थोड़ा मुश्किल भी है। तो अभी इस एग्जीबिशन में करीबन 25 आर्टिस्ट हैं। इंडिया के बाहर से हमेशा यूरोप से, जर्मनी से कुछ आर्टिस्ट होते हैं, दुबई से, बट इस बार थोड़ा नहीं हो सका है, थोड़ा एयरलाइन के प्रॉब्लम की वजह से। तो ये होता रहता है। और हम इसके अलावा फैशन शो जैन गुरु जी के इवेंट्स और म्यूजिकल करते हैं और करते रहेंगे। सबके सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। बच्चे भी इस बार शामिल हुए, पहली बार हमने कुछ बच्चों को स्पेस दिया। लास्ट टाइम भी 2 बच्चे थे। मुझे लगा कि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं रंगों के जरिए, अपने आकृतियों के जरिए, तो उनको क्यों ना रखें। ज्यादातर जो क्यूरेटर होते हैं या तो मास्टर्स के रखते हैं या सीनियर्स के रखते हैं या बच्चों के रखते हैं। मैं सबको रखता हूँ, सब मिल के चलिए। सब हम भी बच्चों को भी समझे, बच्चों भी बड़े से प्रेरित हैं। हम मास्टर्स भी रखते हैं, जैसे आर्टिस्ट का भी यहाँ पर पेंटिंग। तो हम बच्चों को क्यों अलग रखें, उनको क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों को बड़ा एक प्रोत्साहन मिलता है, वो बच्चे कुछ और करेंगे लाइफ में। जब यहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे उनको प्रोत्साहित किया जाता है तो थोड़ा और उत्साहित होते हैं और अच्छा करेंगे। इसलिए हमने Yes, ma'am, आपकी I'd like to congratulate Akriti Art Foundation for its 24th exhibition, and
I still cannot understand how Manmohan ji can choose from so many artists, 22, to select. It's not easy. It's not an easy job. And from India, from Dubai, from Europe, and of course from down under, my country, Australia. And I'm so happy to be here. I make a point of being here, and I can't thank Manmohan ji for inviting me always. And the platform Manmohan ji gives to these upcoming artists, it's like, I mean, I can't thank him enough. And the artists, you know, to interact with them, you see how they think, how long it took to make, and it's you learn so much from them. The way they look at art and how we look at art, and the expression. To have the expression on the face, it's not easy. It looks easy, but nothing is easy. But I think now we should support them. We should tell the public that this, through our social media, that this art is there. You know, under one roof, you have 22 beautiful artists, and I think we should help them by supporting them and the foundation, which does a lot. Manmohan ji, what you've done selflessly, you give your 110% to anything you do. You're hardworking, and I've known you for a number of years. And I congratulate again to this beautiful foundation and the artists and the beautiful children and their parents for supporting. I think you should start how we learn music and instruments at a very young age. We should expose children at that age, and I see these people becoming famous artists in future. But thank you again. God bless them all. Thank you for having me. Sir, so fortunate enough to be part of this. About the art, what I have learned throughout my career and experience, there is no perfection in art. There is always a room of improvement. But today, when I have seen so many good paintings, I didn't find a small fraction of improvement in any way. They are so perfect in their own ways. And collecting them all together at one place is phenomenal job. That is, the one word is fantastic, Manmohan bhai. Excellent job. Excellent job. Thank you so much for inviting us and showcasing so beautiful talent. आप लोगों का धन्यवाद कि कोई समय निकालेगा, कोई 1 मिनट भी समय निकालता है तो उसका बहुत ऐसी चीजों के लिए समय निकालना जरूरी है और निकालना चाहिए। आज व्यस्तता ऐसी है कि लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं, खाना खाने का टाइम नहीं, पानी पीने का टाइम नहीं, लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। वहाँ पे आप इतनी दूर से आए हैं, अजंता जी है, ये कोलकाता से आए हैं, निर्मला जी इतने व्यस्त रहती हैं, मंजू भाभी, इनके लिए समय बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना सकते हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। हम हमेशा अपने व्यस्त समय निकालते हैं तो अच्छा लगता है। इसी बहाने हम लोग 4-4 साल के बाद जुड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया और कमेंडेबल काम किया है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। कला साधना को सादर वंदन, आपकी कला साधना को सादर वंदन, आपकी यश सुरभि फैले जैसे चंदन, नित नई उपलब्धियों के शिखर पाए आप। इस कला प्रदर्शनी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं कोलकाता से आई हूँ। मनमोहन जी ने बस कुछ दिन पहले ही मेरे को व्हाट्सएप पे इनवाइट की कि यहाँ पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिंदा जी आप हो सके तो आ जाइए। ऐसे कार्यक्रम में मैं नहीं आऊँ और आप बुलाए मैं नहीं आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं दिल्ली से कल आई हूँ और स्पाइस जेट काफ़ी लेट था, मतलब 8 घंटा लेट, लेकिन मैं पहुंच गई आज सुबह, जो कि कल पहुंचने वाली थी, आज सुबह आई। तो मेरे को पहले थोड़ा लगा था कि बहुत टायर्ड हूँ, नहीं जाऊँ। फिर पता नहीं शाम का टाइम हुआ कि भाई मनमोहन जी बुलाए और मैं पद्मश्री भजन सम्राट आनंद दिलबर जी का शिष्या हूँ, उनसे सीखती हूँ और उनसे गाना भी गाती हूँ एक साथ। तो मेरे को लगा कि नहीं, इस प्रोग्राम में चलना चाहिए जिसका नाम ही मनमोहन है और मेरा गुरुकुल का नाम भी मोहन निवास है। तो भले ही वो मोहन निवास अभी बदल के समुद्र किनारे हो गए, लेकिन वो है तो मोहन निवास। तो मुझे आना चाहिए लगा और मैं आ गई, और आके मुझे इतना अच्छा लगा आप सबसे मिलके, इतना गुणीजनों, ये मैडम जी, वो मैडम जी, ये सारे मैडम और सारे सर हमको इतने प्यार से समर्थन किया, अच्छा लगा। और बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम बहुत हुए और हम स्वागत करते हैं कि कभी ये 8 जनवरी हम लोग कलकत्ता में भी मनाते हैं।
मैं तो मनमोहन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतने सारे चित्र, इतनी सारी कलाएं एक जगह इकट्ठा की है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक संगम होता है जहाँ पे नदियों का मिलन होता है, यहाँ पे कला का संगम हुआ है, यहाँ पे चित्रों का संगम हुआ है। तो ये, और मैं टीचर हूँ और पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो जिस दिन एग्जाम होता है, बच्चों के चित्रकला का एग्जाम होता है, तो हर दिन की ड्यूटी 3 घंटे होती है या 2.5 घंटे होती है, अगर लैंग्वेज करेगा तो 3 घंटे, ऐसे 2.5 घंटे या 2 घंटे। जिस दिन चित्र का उन लोगों की उनकी परीक्षाएं होती है तो उस दिन 4 घंटे तक रुकना पड़ता है। बच्चे उसको ड्राइंग करेंगे, उसको सुखाएंगे, ब्रश करेंगे और सुखाने तो बहुत लंबा टाइम। मैं सोचती हूँ इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए इन लोगों ने इतना अच्छा, इतना ज्यादा समय दिया है। इन कलाकारों को मैं आज के जमाने में जो कला के बोलते हैं कि जो कला से विहीन होता है वो पशु के समान होता है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके द्विभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। तो इन कलाकारों को मैं नमन करती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इनकी कला यूनिक है।